Welcome back, students. Today, in the next topic, I'll be discussing about research and the scientific method. Managers frequently face issues in the business, and how they solve the issues is through decision making, the good decision making. That is based on the approach of basically research, how they take the research process, and that is what research is all about, which is based on scientific methods, which is based on observable phenomena. It seeks to find answers to questions or the problems. Now let us go into what exactly scientific research is. In my previous session, I have already discussed about the search of facts through arbitrary method and scientific method. The arbitrary method was basically focused on your opinions, your beliefs, your imaginations, which was completely subjective and may vary from person to person. When talking about scientific research, what it does, it focuses on solving the business problems through logical, organized and rigorous method to identify the problem. जो रिगरस मेथड है या जो सिस्टमैटिक या लॉजिकल और जैसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल मेथड है, उसमें हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ही हिसाब से हम डेटा गैदर करते हैं, उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स फ्रॉम इट. दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली साइंटिफिक रिसर्च इज, which means that scientific research is not based on guesses, experiences and your intuitions, and it is more purposive and rigorous. Getting? So scientific research is basically solving the business problem through logical, organized and rigorous method. Systematic way में जब हम business problems को solve करते हैं, that is known as scientific research. Thus we can also understand that scientific research is a set of prescribed procedures. वो procedures जो कि prescribed हैं for establishing and connecting theoretical statement about the events और the problems जिसके लिए हम scientific research करने जा रहे हैं, और for analyzing empirical evidences and for predicting events which are yet to be known. एम्पेरिकल मीन्स, जब यहाँ पे हमने एम्पेरिकल वर्ड यूज़ किया है, एम्पेरिकल मीन्स जो कि वेरीफाई हो सकता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन और थ्रू एक्सपीरियंस. यानी कि जब ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, किस लिए हो रहा है? फॉर स्टैब्लिशिंग एंड कनेक्टिंग थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स अबाउट इवेंट्स, फॉर एनालाइजिंग एम्पेरिकल एविडेंसेस. एनालाइज करना है एम्पेरिकल एविडेंसेस, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, डेटा मिल रहा है, उसको हम कैसे एम्पेरिकली सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रिडिक्ट करते हैं. देन कमिंग टू साइंटिफिक मेथड, दस वी कैन से साइंटिफिक मेथड इज बेस्ड ऑन सम पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है, which can be, it is an empirical evidence, utilizes relevant concepts. ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ लेंगे, not unlike arbitrary method. It is committed to only objective consideration. Why objective consideration? Reason being यहाँ पे objective based study होती है, logical होती है, based on facts होती है. It is not subjective, it is completely objective, related to the research problem. It aims at nothing but making adequate and correct statements about the population objects. जो भी population objects हैं, उससे related जो भी हमारे statements हैं, उसके ऊपर work करता है. Then it results into probabilistic predictions. जब probabilistic predictions की बात आती है, probability की बात आती है, यानी कि events, chances कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, हम उसके बेसिस पे करते हैं. Its methodology is made known to all concerned for critical study
and for use testing the conclusions through replications. critical study है, हम रेप्लिकेट करते हैं उसको बाकी सब जगह की वो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है, ताकि जो भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों सिमिलर टाइप की, वहाँ पे भी रेप्लिकेट करके अप्लाई करके हम अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ले सकें. इट एम्स एट फॉर्मुलेटिंग मोस्ट जनरल सेइंग्स व्हाट कैन बी टर्म्ड एज साइंटिफिक थ्योरीज. इसका बेसिक मकसद भी यही होता है कि वो फॉर्मुलेट करता है साइंटिफिक थ्योरीज को. ये काम होता है साइंटिफिक रिसर्च का, और या ये कह सकते हैं इन अजम्पशंस के बेसिस पे साइंटिफिक रिसर्च चलती है. साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट्स टू अचीव द आइडियल. हम किसके थ्रू अचीव करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड पोस्टुलेट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इन वेरिंग प्रोपोर्शंस. जब साइंटिफिक मेथड हम फॉलो कर रहे हैं रिसर्च का, उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं या उसको हम कैसे अचीव कर रहे हैं? थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन. कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम दो ग्रुप्स अगर फॉर इंस्टेंस टेस्ट करना चाहते हैं, उनके ऊपर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, उनका बिहेवियर हम बेसिकली जज करना चाहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन हम अगर कर रहे हैं तो कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दोनों के बेसिस पे करेंगे. लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड पोस्टुलेट्स, कौन से अजम्पशंस हैं उसके बेसिस पे या तो एक अलग अलग करते हैं या हम इनको वेरिंग प्रोपोर्शंस में यूज़ करते हैं टू सॉल्व आवर साइंटिफिक रिसर्च प्रॉब्लम. देन एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होता है? बेसिकली इज डन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड डिस्कवर न्यू रिलेशनशिप इफ एनी अमंग वेरिएबल्स. अब यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन इज डन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है, हाइपोथेसिस. बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है? ये अजम्पशंस होते हैं. ये क्या होते हैं? ये अजम्पशंस होते हैं जो कि हम लेते हैं अपनी स्टडी में, और यही हाइपोथेसिस बेसिकली हमको हमारी स्टडी में डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, एंड दे बेसिकली हेल्प इन सॉल्विंग आवर रिसर्च प्रॉब्लम्स जब हम इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. Sometimes what happens, the conclusions drawn on the basis of experimental data may be misleading or faulty, poorly experimented, poorly designed, badly experimented और faulty interpretations. तो ये बहुत important है, जो भी conclusions निकल रहे हैं on the basis of in experimentations और on the basis after testing the hypothesis, basically कि किस तरीके से हमको करना है. Then the researcher must pay all possible attention while developing the experimental design and drawing interferences. Class we would be discussing this. ये जो research designs हैं, experimental research designs, आगे depth में, but अभी जो हमने experiment का definition use किया, experimentation कैसे करते हैं research में, वो इसके through करते हैं कि हम hypothesis करते हैं. We try to discover new relationship among the variables that are there in the study, जो कि हम अपनी problems को जब study करते हैं उसके basis पे निकलती हैं, तब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं. तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, हम इसको बाद में डेप्थ में समझेंगे, बट एक चीज़ का ये ध्यान रखना है एज ऑफ नाउ कि रिसर्चर जब भी रिसर्च कर रहा है तो वाइल डेवलपिंग अटेंशन हैज़ टू बी पेड एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस. बहुत ध्यान से हमें कंक्लूजन्स भी निकालने हैं, फॉल्टी कंक्लूजन्स नहीं निकालने हैं, बिकॉज द पर्पस ऑफ द सर्वे इन्वेस्टिगेशन मे ऑल्सो बी डन साइंटिफिकली टू गैदर इंफॉर्मेशन एज टू वर्क ऑन वेरियस रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड गैदर कंक्लूजन्स. Then once we have gone through what exactly scientific research is, that constitutes your experimentations, your observations, your step-by-step logical process, now let us understand what are the characteristics of scientific research. As you can see, it is purposive, rigor, testability, replicability, precision and confidence, objectivity,
जनरलाइजेबिलिटी एंड पार्सिमोनी। इसको हम डेप्थ में समझते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ अ मैनेजर हु इज इंटरेस्टेड। ये एक केस है, ये सिनेरियो है, ये आप कह सकते हैं बिजनेस प्रॉब्लम है जिसके ऊपर वो कर रहा है। इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग हाउ एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड, यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो है वो कमिटमेंट कैसे बढ़ सकता है। हमें एम्प्लॉयज़ और कमिटमेंट के ऊपर स्टडी करना है। Considering the example कि manager is interested in investigating the how the employees are committed to the organization और commitment basically can be increased, तो इसमें हमने ये देखा एम्प्लॉय और कमिटमेंट के ऊपर का हमें ये पढ़ना है स्टडी कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम ये जो हॉलमार्क्स हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको कंसिडर करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। पर्पसिवनेस, यहाँ पे मैनेजर ने एक पर्पस लिया है। मैनेजर हैज स्टार्टेड द रिसर्च विद द डेफिनेट एम और पर्पस। उसका डेफिनेट एम क्या है कि कमिटमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है। जब साइंटिफिक रिसर्च होगी तो वो पर्पसिव होगी, किसी पर्पस के लिए कंडक्ट की गई होगी। ठीक, द फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन as it will be beneficial in many ways। उनका फोकस ही मैनेजर का यही है कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट बढ़ा सकते हैं। एन इंक्रीज इन एम्प्लॉय कमिटमेंट वुड ऑब्वियसली लीड टू लेस टर्नओवर। एम्प्लॉय कम लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे, कम लोग एब्सेंट होंगे, एंड प्रॉब्लिटली ऑब्वियस सी बात है जब ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसर्च का पर्पस देखा गया कि उन्हें क्या करना है, पर्पस है उनका कैसे एम्प्लॉय का कमिटमेंट बढ़ाया जा सकता है, क्यों बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए भी उन्होंने चीज़ देखी है। उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स निकाले हैं या कुछ फैक्टर्स निकाले हैं। दस वी कैन से द रिसर्च हैज़ अ पर्पस एंड इट इज़ टू बी फोकस्ड एंड पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक, सेकेंड, रिगर। A good theoretical base and sound methodology design would add rigor to a purposive study। यानी कि अगर रिगरस है, यानी कि प्रॉपर तरीके से केयरफुली करी जा रही है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टिट्यूड है, किस हद तक के करेक्ट है, तो हम ज़्यादा अच्छे से अपनी स्टडी को कर पाएंगे। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली rigorous or rigor characteristic of scientific research stands for। then testability, यानी कि जब हम for instance researcher हैं, ठीक है, and I hypothesize, यानी कि I assume that those employees who perceive greater opportunities for participation in decision making would have a higher level of commitment। जैसे कि हमारा पर्पस था स्टडी का कि हमें कमिटमेंट लेवल एम्प्लॉयज़ का कैसे बढ़ाना है। अब इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हमने एक हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस इज मेयरली एन अजम्पशन। एन अजम्पशन क्या हमने इस स्टडी में अजम्पशन लिया, इस प्रॉब्लम में अजम्पशन लिया कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी देते हैं या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑटोमेटिकली कमिटमेंट बढ़ जाएगा। पीपल वुड स्टार्ट टेकिंग एज देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन जब उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया जाएगा। दिस इज अ हाइपोथेसिस, ये एक अजम्पशन है, मतलब कि ये एक हाइपोथेसिस है। पार्टिसिपेशन ये लिया गया, ये एक हाइपोथेसिस हो गई। ठीक है, इसको हमें टेस्ट करना है। दिस कैन बी टेस्टेड। हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से पूछेंगे कि क्या ऐसा है। अगर वो कहते, उनके रिस्पॉन्सेज जो आएंगे उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे फॉर इंस्टेंस कोरिलेशन एनालिसिस लगाया है। वेदर द हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे हम आगे अपने रिसर्च में जाते हैं। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली टेस्टेबिलिटी इज़, यानी कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, अजम्पशन लेते हैं, यानी एंड ऑल्सो मैंने ये चीज़ बोली थी, हाइपोथेसिस आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी स्टडी के लिए, तो हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक
जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि हमें जनरलाइज करनी है अपनी फाइंडिंग्स। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एक एनवायरनमेंट में, एक डिपार्टमेंट में ये चीज़ एप्लीकेबल है, हमें ये इंश्योर करना है कि बाकी और भी सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ एप्लीकेबल होनी चाहिए। जो भी हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स आती हैं, हमने टेस्ट करी थी हाइपोथेसिस, हमारी फाइंडिंग्स आ रही है कि हाँ, अगर एम्प्लॉयज़, हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं कि यस, अगर इफ़ आई एम इन्वॉल्विंग पीपल इन डिसीजन मेकिंग तो उनका कमिटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ये हमारे रिजल्ट्स आते हैं, यस दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू, आई हैव टू इंश्योर कि ये जनरलाइज हो पाए बाकी डिपार्टमेंट में या बाकी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो। What happens? The wider range of applicability of the solutions generated by the researcher would be basically more useful research to the users. अगर वो specific organization के लिए हो जाती है तो वो generalize नहीं हो सकती है, मे बी हो सकती depending on type to type organization, but कोशिश हमें ये करनी है कि जो भी हम application areas हैं या जो भी हम research कर रहे हैं वो generalize हो। ये scientific का research का एक characteristic होता है। Then replicability. Let us suppose another example that the manager, based on the results of the study, concludes that the participation in decision making is one of the important factors that influences the commitment of the employees to the organization. अगर हमें इसको डिफरेंट तरीके से देखना है तो हम ये दे सकते हैं कि द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस वुड शुड बी सपोर्टेड अगेन एंड अगेन, यानी कि अगर हम इस चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार इसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स एक ही जैसे आने चाहिए। रेप्लिकेबिलिटी, same type of research is repeated in similar circumstances, and yet again when the same type of research is repeated in similar circumstances, this is what replicability is. Then precision and confidence, important one, कितना क्लोज है हमारी रियलिटी के बेसिस पे, किस हद तक ये चीज़ रियलिटी में चल रही है या एक्सेप्टेबल हो रही है, बेस्ड ऑन दी सैम्पल जिसके ऊपर हमने स्टडी किया है। एंड कॉन्फिडेंस रेफर्स टू किस हद तक के ये करेक्ट है। हम 100% तो नहीं मान सकते, राइट, कॉन्फिडेंस की बात होती है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 95% हमारी करेक्ट होगी, 5% देयर वुड बी चांसेस कि वो errors हो सकते हैं, that is known as basically the confidence level. Then coming to objectivity. Objectivity refers to the conclusion drawn through the interpretation of the results should be objective, that is should be based on the facts of the findings derived from the actual data. ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, ना कि हमारे इमोशन से रिलेटेड होना चाहिए या हमारा सब्जेक्टिव होना चाहिए। इट शुड बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। जो भी हम रिजल्ट्स निकालें, जो भी हम कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं थ्रू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द डेटा एनालिसिस शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी कि कुछ पर्पस हमारा अचीव कर रहा हो वो स्टडी। देन कमिंग टू पार्सिमनी, this is another characteristic. Simplicity in explaining the phenomena or problems that occur. किस हद तक के ये सिंप्लीफाई कर पा रहा है हमारी प्रॉब्लम को, एंड इन जनरेटिंग सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम्स, किस हद तक के ये सॉल्यूशंस जनरेट कर रहा है हमारी प्रॉब्लम्स के, इज ऑलवेज रेफर्ड टू एज complex research framework that may consider to be unmanageable number of factors. These are basically the characteristics of scientific research. Now the building blocks of science in research. What it is? दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक आता है डिडक्शन, दूसरा आता है इंडक्शन। किसके बेस पे हम, हमारा साइंस का क्या रोल है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ साइंस इन रिसर्च, राइट। डिडक्शन मीन्स बाय विच वी अराइव एट अ रीजनड कंक्लूजन्स। हम अपने रीजनड कंक्लूजन के थ्रू कैसे जा रहे हैं, बाय जनरलाइज्ड या लॉजिकल जनरलाइजेशन ऑफ अ नोन फैक्ट वी अराइव एट अ रीजनड कंक्लूजन्स। ठीक, अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं डिडक्शन का, फिर हम इंडक्शन का भी देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा।
we all know that all high performers are highly proficient in their jobs. जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो अपनी जॉब्स में बहुत प्रोफिशिएंट है, या हम ये भी कह सकते हैं जो प्रोफिशिएंट हैं वही अच्छे परफॉर्मर्स हैं. If John is a high performer, then we can conclude that he is highly proficient in his job. एक और एग्जाम्पल, ऑपरेशंस रिसर्च या मैथमेटिक्स वही ज़्यादा अच्छे से कर सकता है जिसको मैथ्स आती है. This is what deduction is. We arrive at a reasoned conclusion by logical generalization of a known fact. Then coming to induction. Induction क्या होता है? In which basically we observe certain phenomena and on the basis of that we arrive at some conclusions. यहाँ पे observation आता है. In other words, we can say we logically establish a general proposition based on observed facts. हम general proposition develop करते हैं on certain observed facts. For instance, example देखते हैं इसका induction को समझने के लिए. The production process are the prime features of factory or manufacturing plant. अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैक्ट्री को देखते हैं बेसिकली, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन ही होगा, प्रोडक्शन ही होता होगा बेसिकली. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इंडक्शन इज. Then coming to when research is designed to test some specific hypothesized outcomes, as for instance to see, ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम आगे पूरा समझेंगे कि हाउ इट हैज़ गॉन इन अ बिल्डिंग ब्लॉक या रोल ऑफ साइंस इन रिसर्च, राइट. फॉर इंस्टेंस जब हम रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं, ये रिसर्च प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं टू टेस्ट सम हाइपोथेसिस, तो कैसे फ्लो जाता है. एग्जाम्पल लेते हैं, कंट्रोलिंग एवर्सिव नॉइज इन द एनवायरमेंट would increase the performance of individuals in solving mental problems. अगर एक रिसर्च प्रॉब्लम ये है कि नॉइज़ का इम्पैक्ट मेंटल या मैथ सॉल्व करने में या पजल सॉल्व करने में क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम नॉइज़ को कंट्रोल कर लेते हैं एनवायरनमेंट में, तो जो परफॉर्मेंस होगी इंडिविजुअल्स की पजल सॉल्व करने में वो ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई होगी, राइट. तो इसमें द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, एक थ्योरी चलती है कि नॉइज एडवर्सली अफेक्ट्स मेंटल प्रॉब्लम. एक थ्योरी ये हमने अज्यूम करी, इन्वेस्टर बिगिंस विद द थ्योरी एज अ इन्वेस्टिगेटर, सॉरी एज अ रिसर्चर. हमने ये ध्यान रखा हुआ है कि नॉइज़ जो है ये एक हमारा मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं ना कहीं आता है, ये एक अफेक्ट करता है, बेसिकली एडवर्सली अफेक्ट करता है नॉइज़ जो है मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है. द हाइपोथेसिस जो हम जेनरेट करेंगे कि अगर नॉइज़ कंट्रोल होती है तो मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी मोर क्विक एंड करेक्ट बेसिकली. जो हाइपोथेसिस, अभी हमने क्या देखा कि थ्योरी करी, थ्योरी ये डेवलप करी कि नॉइज़ और ऑब्वियसली बात है अफेक्ट करती है हमारी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब हम हाइपोथेसिस यानी कि जो हम अजम्पशन ले रहे हैं अपनी स्टडी का, ये ले रहे हैं कि नॉइज़ इज़ कंट्रोल्ड. अगर नॉइज़ कंट्रोल की जाती है तो मेंटल पजल्स कैन बी सॉल्व्ड मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली. तो क्या होता है, तो बिगिन विद दी रिसर्च प्रोजेक्ट, हम इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड इज़ डिज़ाइन बेसिकली टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस. इसमें क्या होता है, द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, जो रिजल्ट होंगे दैट वुड हेल्प द रिसर्चर टू डिड्यूस और कंक्लूड दैट कंट्रोलिंग द एवर्सिव नॉइज does indeed help the participants to improve the problem performance of mental puzzles. इसमें ये कहा गया है जो नॉइज़ होती है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है मेंटल मैथ्स सॉल्विंग या पजल सॉल्विंग में एडवर्स अफेक्ट करती है. अगर हम इसी नॉइज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, हम इसके ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं कि लोगों से उनकी परफॉर्मेंस बेसिकली चेक की जाती है कि किस तरीके से हम दो टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. एक जहाँ पे एक ग्रुप को पजल सॉल्व करने के लिए देते हैं जहाँ पे नॉइज़ कॉन्टिन्यूसली चल रही है, और दूसरा ग्रुप को हम देते हैं जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें बहुत पीसफुल होता है, किसी टाइप की नॉइज़ नहीं होती. हम दोनों की परफॉर्मेंस चेक करते हैं टेकिंग दी अजम्पशन कि सबका मेंटल लेवल एक है, ठीक.
तो यहाँ पे जब हम उनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स में वेरिएशन निकलेगा। तो दिस इज़ ये मेथड बेसिकली हम फॉलो कर सकते हैं। एक तरीका होता है मैनेजमेंट में भी अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, किस तरीके से कंडीशंस अफेक्ट करती हैं। दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग विद द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, formulating hypothesis, then logically deducing the results from the study is known as hypothetical deductive method। जब हम इसके थ्रू अपनी स्टडी का या अपनी प्रॉब्लम के रिजल्ट्स निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं hypothetical deductive method of scientific research। नाउ लेट अस, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ साइंस, जो कि स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया, वी ट्राई टू डेवलप द थ्योरी, this is the hypothesis, we develop the constructs, concepts and operational definitions। why operational definitions? reason being study के हिसाब से definitions भी उसी के confined scope के हिसाब से होनी चाहिए। research design बनाते, data collection होता है, analysis of data होता है, interpretation of data हो, and refinement of pure research और applied research किस तरीके से होता है, ये basically हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम पहला स्टेज ऑब्जर्व करते हैं जिसमें कि हमें ये देखना होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियो आ जाता है इन विच आर सेंसेस, अगर फॉर इंस्टेंस हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ अपने डेली लाइफ में भी ये चीज़ हम अज्यूम कर सकते हैं, जैसे ही कोई हमारे फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन आता है, वो फ़ौरन हमको क्लिक करता है, राइट। द सेम वे दिस हैपन्स इन दी, जब हम कोई भी रिसर्च करने चलते हैं, ऑब्जर्वेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज इन विच सेंसेस, हमारे सेंसेस वर्क करते हैं कि क्यों कोई चेंज आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सच चेंज। अगर किसी के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तब भी हम पता लगाते हैं। सेल्स हमारे प्रोडक्ट की कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, अगर ऑटोमेटिकली सेल्स कम होने शुरू होती है तो ये हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, एंड उसके बेसिस पे बेसिकली हमारा सेकंड स्टेप फॉलो होता है, दैट इज़ कि हम प्रिलिमिनरी लेवल पे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व किया, फिर हमारा सेकंड स्टेज आया, प्रिलिमिनरी लेवल पे हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया, विच मीन्स सीकिंग द इंफॉर्मेशन इन डेप्थ ऑफ व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। This could be done by talking informally to several people in different work settings, or talking to, or finding data or information from ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूजुअली हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। Then next comes the theory formulation. This is the next step. यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की होती है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं इन अ मैनर दैट द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन बी कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड टेस्टेड। इस वाले स्टेज में हम क्या करते हैं, या इस स्टेप में बेसिकली क्या करते हैं, जब हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो हम प्रॉब्लम को उसको प्रॉपर तरीके से हम थ्योरी को फॉर्मुलाइज करते हैं, हम उसको एक तरीके से एक साथ कंबाइन करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में उसको हम कॉन्सेप्चुलाइज कर पाएँ, समझ पाएँ और उसको हम आगे चल के टेस्ट कर पाएँ। द थ्योरी फॉर्मुलेटेड इज़ ऑफन गाइडेड बाय एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशंस। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे गेसेस, जो एस्टिमेटेड एडुकेटेड गेसेस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन information, that can be on the basis of our own knowledge base. In this step basically the critical variables are examined and like what are basically the contribution and the influence in explaining the problem कि जिसके basis पे हम इस problem को solve कर पाएँ। The next step is hypothesizing. It's after the theory has been formulated, हम assumptions लेते हैं, हम directions provide करते हैं, क्या ऐसा हो रहा है। From the theorized network of associations among the variables, certain testable hypotheses or educated estimations can be generated. यहाँ पे हम assumptions लेते हैं। Then coming to what exactly hypothesis testing is, deductive research is called deductive research because
hypotheses that were originally formulated do not get generated through the process of induction. That is, after the data are obtained, some creative insights occur, and based on these, new hypotheses could be generated to be tested later. Then further साइंटिफिक डेटा कलेक्शन, जब हमने अपनी हाइपोथेसिस बना ली, जब हमने हाइपोथेसिस अपनी जनरेट कर ली, हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंडरी रिसर्च और द इंफॉर्मेशन प्राइमरी रिसर्च, द नेक्स्ट स्टेप इज साइंटिफिक डेटा कलेक्शन टू टेस्ट दोज हाइपोथेसिस जो भी हमने अजम्पशंस लिए होते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से. Data on every variable is a theoretical framework from which the hypothesis should be collected. These data then form the basis for further analysis. जब data हम collect करते हैं, data can be collected through primary, data can be collected through secondary. Primary first hand information होती है, basically it is purposefully for that particular research problem. देन हमारी जो सेकेंडरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा बेसिकली इसीलिए ही होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि ऑलरेडी कंडक्टेड स्टडी का डेटा होता है, जो हमारी डेटा से, हमारी स्टडी से रिलेटेड या हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. देन कम्स इन द डेटा एनालिसिस स्टेप दैट जो गैदर्ड स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं, देन वी कम अप थ्रू आर वैलिड कंक्लूजन्स. जो एनालिसिस होता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है. एनालिसिस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव can be done if certain estimations are substantiated, and qualitative data refers to information basically that is derived through interviews and observations. यहाँ पे इस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के थ्रू हम यहाँ पे कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं, वेयर एज इन क्वांटिटेटिव डेटा बेसिकली जो हम अपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमें कोरिलेशन लगाना है, कि हमें रिग्रेशन लगाना है, कि हमें जेड टेस्ट लगाना है, जो कि हम आगे सेशंस में पढ़ेंगे. देन डिडक्शन होता है. दिस इज़ द लास्ट स्टेप, इज़ द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट कंक्लूजन्स बाय इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट्स. जो भी डेटा हम एनालाइज करते हैं, कुछ कंक्लूजन्स आते हैं, कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उससे हम क्या कंक्लूजन्स डिराइव करें, डिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज डिडक्शन. दिस इज़ बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली साइंटिफिक रिसर्च इज़. साइंटिफिक रिसर्च में हम कुछ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी जो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाएँ. I hope this has cleared many more areas of the research. In the next sessions or in the future sessions, we will be going into the problem solving और या हम problem कैसे frame करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे. Thank you.